welcome in Sanchit Academy. Today we are going to focus what are the opportunities. Opportunities क्या है और career in physics. Generally physics. As you all know, physics is a some different subject than other. It is called physics is a colorful subject because all colors are we study the nature. This is the basic definition of physics. Now if we see the career in the physics, there are many sectors, there are many disciplines, there are many sectors and what is called as jobs, employment. In every field the subject physics will help you. If you want to become whatever you want to become, that the physics will having some potential ability and some skills when you study the physics. Actually it is a science of fact, it is a science of I think reality, because a reality situation we have to derive that physics will help. And physics is also nothing but the applied mathematics, so high level mathematics and logical thinkings can be developed. So these are some questions why do we work. So for the job purpose, after we complete our education and some degrees or graduations, then these are some. Now the question is why physics? Why physics? So physics is to develop our mind, to develop our thinking level, to develop critical levels, to build a confidence. So this is the one. Confidence अगर build करना है तो आपको फिजिक्स के दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है. चाहे साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, पर फिजिक्स ऐसा साइंस है कि सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप एक्साइटमेंट, आपकी जो ये स्टैमिनाज है, आपकी पूरा बॉडी का जितना भी आप इस लाइफ में करना चाहते हो तो आप फिजिक्स से कर सकते हो. तो कुछ एरियाज है, देयर आर सम एरियाज. नाउ फर्स्ट वी start from physics in a basic. Physics in a basic. Where is the some basic there are? Yes. So the basic part of the physics, there are different sectors, but the important part in physics is basic. So that will start from your schooling. It's school level from 6 to 7. In particularly science, we study the science. But in that particular science there are some physics terms. So we learn from universe, we learn our solar systems, and whatever the question first we see when we observe the worlds or the natures. So that questions, what is the reason behind it, we have to find it. So the basic physics, the start of basic physics, you start from the schooling level from the 6th. So if you are having some ability, some aptitude towards physics and having some interest observing and helping, and teachers or your mentors, or you can help the experts or some basic knowledge, but true knowledge. So nowadays it is possible because the internet media is there, you can search the information, but basic things you have that eagerness, keenness to achieve it. So that's important. The first physics interest you start from the basic. If you complete the basic in basic 6 to 8th standard, you have to basic about questionings. You have the questioning, then you develop
the knowledge of physics in the future. Now the second one is the foundation course. So that there are some foundation course run by different institutes also. So the foundation course is very, very important. That foundation course under NCERT syllabus, that is very important. First things for any subject, NCERT books for CBSE patterns or ICSE patterns. So that books and qualitative study materials that you have to use to increase or to enhance your knowledge, physics knowledge. So the foundation course, in that you have to attempt, you have to try for, आपको इसके लिए ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा. फिजिक्स ओलंपियाड है और उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे जो माइंड्स को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको उसमें सॉल्व करोगे, तब आप फिजिक्स की जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा. बेसिकली बहुत जगह पहले बेसिक्स नहीं होता है और फिर 12th में जाके देखते हैं, हम डायरेक्ट 12th में जाके पढ़ते हैं कि फिजिक्स, और फिर बहुत हमें डिफ़िकल्ट लगने लगता है, ये कैसे आया वो कैसे आया, क्योंकि हमें उसके फर्स्ट जो बेसिक जो कहाँ से स्टार्ट होता है वो वही हमें, अगर बैकवर्ड का कुछ नहीं है, अगर आप बेसमेंट ठीक से नहीं है और आपको बिल्डिंग बांधने के लिए तो वही सेम वैसा ही हो रहा है. तो ओलंपियाड्स आप देख सकते हो स्कूल लेवल तक 9-10 तक, और फिर NCERT की में आपका 9 to 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स अलग सब्जेक्ट से पढ़ाई किया जाता है. और उसके अलावा कुछ स्टडी मटेरियल है जैसे कि मेरिट नेशन का है, रचना पब्लिकेशंस का है, कुछ और बहुत सारे पब्लिकेशंस है NCERT बुक के अलावा. सो यू कैन सर्च एंड यू स्टडी वेरी वेल. सो फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स होगा. फिर आपका आएगा वेरी इंपॉर्टेंट 10th एंड 12th. सो 10th और 12th में सेम अगर आप ये किए, इफ़ यू आर परसुइंग फॉर द दिस मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करियर्स, दैट इज IIT में करियर करना है. सो IIT हैविंग, इट इज़ अ इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड फॉर एंट्रेंस आपको वहाँ पे एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, आपका 12th 10+2 अगर अच्छे से होता है, अच्छी क्वालिटी से आप अगर करते हो, कंटिन्यूसली स्टडी करने के बाद, देर आर सम रैंक, देर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रॉम दैट देर इज़ ओनली फ्यू हंड्रेड और थाउजेंड्स स्टूडेंट्स आर अपीयर और सेलेक्टेड फॉर द IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये दुनिया का, भारत में नहीं तो इसका रैंक जो है बाकी के वर्ल्ड के हिसाब से बाकी के देशों में भी इसका बहुत महत्व रखता है. सो IIT, फिर आप आर्किटेक्चर में भी आपका करियर कर सकते हो अगर आपका फिजिक्स अच्छा है. देन आपका फिजिक्स अगर अच्छा है तभी, ओनली द फिजिक्स सब्जेक्ट डिटरमाइंस योर एंट्री इन द मेडिकल आल्सो. सो MBBS अगर बनना है, फिजिक्स का स्कोर अच्छा है, क्योंकि बाकी के स्कोर तो चाहे आप बायोलॉजी का, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ते और समझ में आता है खुद से, और सबका स्कोर आगे जाता है. अगर उससे वो तो दोनों लेवल पे सेम होगा दो सब्जेक्ट के लिए, पर आपका स्कोर अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको फिजिक्स बहुत ज़रूरी है. तो फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो आप MBBS को भी है. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे जिसका फिजिक्स अच्छा था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, क्योंकि फिजिक्स का स्कोर वो MBBS, बहुत सारे स्टूडेंट MBBS को जा सकते हैं अभी भी अगर चाहे. पर बहुत कुछ ऐसे लोगों की ये रहती है, या कुछ ऐसे दूसरे और बाहर के ट्यूशन वाले पैसे कमाने के लिए, तो ऐसा रहता है कि आप थोड़ा मैथ्स छोड़ दीजिए. तो मैथ्स को कभी नहीं छोड़ना, PCM ग्रुप ये कभी भी नहीं छोड़ना है. जनरल ग्रुप इज़ अ बेस्ट ग्रुप, और उसमें से जो है आपका, चाहे आपको करियर बायोलॉजी में करना है, कुछ भी करना है, पर 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट लेके ये करना है. मैथ्स को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि मैथ्स वहीं से आपका बेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वो फिजिक्स के रिलेटेड रहता है. तो फर्स्ट 12वीं के बाद 10+2 के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी. उसमें IIT को जा सकते हो, आप MBBS को जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, और कुछ भी कर रहा तो आप इसमें स्किल, बहुत सारे स्किल आप हासिल कर सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में आप
फार्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिजिक्स की जितनी भी टर्म्स आप अगर आपने ये किया है, स्टडी किया है, पढ़ाई की है, तो आपको एक माइंड आपका अच्छे से डेवलप हो जाता है और आप कोई भी चीज़ की तरफ अच्छे से देखते हो और कोई फील्ड में जाओ आप, उसमें आप अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा कहना है कि ये जो करियर का है, तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उस जॉब आप कुछ दिन करोगे पर उसके बाद वो जॉब आपको ये लगेगी और आप सोचोगे कि मुझे ये नहीं था, मुझे ये करना है। फिर बाद में आप वो करने के बाद फिर और दूसरे इसके लिए सर्च करते हो, या फिर वहीं पे आपकी प्रोग्रेस नहीं होती है, या प्रोग्रेस या फिर कुछ ऐसे माइंड्स प्रॉब्लम या ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो एक बात है। इसलिए ये फिर आप 12वीं के बाद आप चाहे तो प्लेन बीएससी को भी जा सकते हो विथ फिजिक्स सब्जेक्ट। अनदर देर इज़ वन ग्रुप, देर आर सम different groups in universities. Some universities having 3 subject for 3 years. Some university having specialization for first year there is 3 subject, then 2 subject, then only first subject. So for graduation, so in after 12th in physics, so you can graduate with subject PCM, physics, chemistry and mathematics. So mathematics also related to physics, means उसको छोड़ना नहीं है। फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे, फिजिकल केमिस्ट्री ये फिजिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स, कुछ फार्मूलेज, कुछ बेसिक जो है यहाँ पे आपको यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसे जब आप बीएससी करोगे, बीएससी के बारे में स्पेशल बोल रहा हूँ, तो बीएससी करने में जब फिजिक्स में, तो जितने भी आपने पढ़ाई की है, अगर आप आईआईटी को नहीं गए हो, आप एमबीबीएस को नहीं लगा है और आप कुछ भी नहीं है और आप एकदम आप क्या करना है तो हम बीएससी करते हैं, पर उसमें भी कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। इट गिव्स आल्सो सम अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूटी जो है, अगर हम उसमें कंटिन्यूटी अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी इसमें आप पीछे, या आपके इसमें आपका जो सक्सेस जो है, सक्सेस हम जिसको बोलते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगा। और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो जिसमें आप क्या स्ट्रगलिंग कर रहे हो, और उसमें से भले ही आपको स्टार्टिंग में वो आपको डिफ़िकल्ट लगे, पर रियल मज़ा फिर जब वो कंप्लीट होने को आता है, कुछ चीज़ें अच्छी होने लगती है, तब आपको लगता है अरे यही था मेरा। और ये सक्सेस ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे जाके हमें कोई चीज़ है वहाँ पे ले ले, ये तो चलते रहता है जब तक आपका पूरा लाइफ है, पूरा ज़िंदगी में हमें देखना है। ज़िंदगी में वही करना है कि जो हमें अच्छा लगे। और इसमें मैं ये नहीं कर रहा कि सभी फिजिक्स ही करने लगे, पर हमें बहुत सारे, अगर गलती से भी हम फिजिक्स मिल जाए तो भी बहुत वो आपके लिए लाभदायक है, और इंटरेस्ट है तो फिर बहुत आप आगे तक जाओगे। आगे तक मीन्स आपके लिए ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बीएससी आप प्लान कर सकते हो, उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका एकदम बेस ये हो जाता है और आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। अगर आप 12 तक 6-7 क्लास से लेके 12 आप बीएससी तक अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है, तो आपका जो थिंकिंग का पावर है, यू थिंक मोर, यू थिंक अबाउट द यूनिवर्स, यू थिंक अबाउट बहुत से दूर दूर की चीज़ें जो है, जो चीज़ें ऐसा हमें लगती है, क्योंकि वर्ड्स की वजह से सब पता चलता है कि क्या है। बहुत सारी एजेंसीज है, ये यहाँ पे हमें धरती पे नहीं काम करना है, हमें आसमान में काम करना है, तो आप आसमान में भी काम कर सकते हो, आप उड़ते काम कर सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ कि स्पेस वॉक में भी आप ये कर सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट की इसमें भी जाके ये कर सकते हो। तो ऐसे है कि बीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, या पीसीएम कुछ इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में भी ग्रेजुएशन करते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपको स्पेशलाइजेशन करना रहता है कि क्या स्पेशल आपको देखना है। तो स्पेशलाइजेशन में अगर आप फिजिक्स है तो फिजिक्स में आजकल बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे बायोफिजिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट आ गया है, एस्ट्रोफिजिक्स है, और बहुत सारे इंटरडिसिप्लिन भी अभी क्या आ रहे सब्जेक्ट्स अभी
नॉलेज की एक्सप्लोजन की वजह से, या जैसे जैसे नॉलेज ये होते जा रहा है, नई नई इन्वेंशंस हो रहे, तो ये सब बढ़ते जा रहा है। बायोफिजिक्स है उसमें, मटेरियल फिजिक्स में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बेसिक है आपके। कंप्यूटर साइंस में भी फिजिक्स का ही एक पार्ट आ जाता है, फिर ये सभी जो है, और इसमें से आपको जो ये चाहिए आजकल फिजिक्स के इसमें फिर कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ ये कर सकते हो। तभी आप 12th से लेके या स्टार्टिंग से लेके आपको शूटिंग का अगर शौक है तो आप छोटे छोटे वीडियोस करके बच्चों के लिए वीडियोस फॉर्म कर सकते हो, कुछ ऐसे कार्टून से आप ये कर सकते हो। और आजकल ये बिजनेस इंडस्ट्री एक आप चला सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी आपकी, अगर नॉलेज आपके पास है फिजिक्स का तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे, और उस आइडियाज़ को आप इस टेक्नोलॉजी के यूज से आप उसको क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे, और ये जो वीडियोज़ है स्टडी मटेरियल्स आप बना पाओगे। बच्चों के लिए जो वीडियोज़ लगते हैं जो बेसिक इसके लिए, फिर सभी सब्जेक्ट में आप वो पढ़ा सकते हो। एक 12th तक एक्चुअली आप 10वीं से 11वीं 12वीं से ही आप अगर बेसिक नॉलेज अगर पढ़ाना चाहे तो वो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो आपकी 5 बार पढ़ाई हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ते पढ़ते पढ़ाना ये भी ज़रूरी है। इसमें से अभी पहले आपको ये नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, पर आपके जो एक कॉन्फिडेंस जो रहता है पढ़ाई के इसमें, और फिर आगे का और आपके इसमें वो बढ़ते जाता है। ओके, तो आप एक बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हो। एमएससी करता है और आपको रिसर्च भी कर सकते हो। फिर जब बीएससी हो जाता है, आपका ग्रेजुएशन हो जाता है इसी में, तो यू आर एलिजिबल फॉर क्लास 1 एनी टाइप ऑफ जॉब्स और सम अनदर करियर्स, अनदर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हो जाती है। तो क्या आपके लिए खुला हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिजिक्स में किया, क्योंकि फिजिक्स से अभी मैंने बता दिया, चाहे तो आप बीएससी करके, कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो फिजिक्स करने के बाद कुछ एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे लोग इधर इंजीनियरिंग या आईआईटीज़ में जाके भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद फिर आपको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जिसमें आप सेक्रेटरी लेवल, कलेक्टर्स लेवल, सीओ लेवल्स इसमें है, या आपका फिजिकल अच्छा है तो आईपीएस के लिए अभी प्रिपरेशन करते हो। सो ग्रेजुएशन इज़ वन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब्स, दैट इज़ वेरी डेयरिंग जॉब्स एंड वेरी प्रेस्टिजियस जॉब्स। एंड तो ये आप इसमें कर सकते हो। फिर आपको सोचना है कि मुझे क्या है, आईपीएस में है कि आईएएस में जाना है, या क्लरिकल में जाना है, या बैंक में जाना है, तो आप बैंक पीओ की एग्ज़ाम भी दे सकते हो। आप डिफेंस में भी जा सकते हो, सीडीएस एग्ज़ाम देके, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। हाँ, मैंने यहाँ पे 12th के बारे में कि आईआईटी भी जा सकते हैं, तब आपको 12th में आप दो जगह पे जा सकते हो, 2-3 जगह पे। एक तो आप एनडीए भी ज्वाइन कर सकते हो, एनडीए नेशनल डिफेंस सर्विस एनडीए एकेडमी, जो खड़कवासला पूना में है, और अपने महाराष्ट्र में एक है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं आप। एयरफोर्स के भी रहता है, 12th बेस पे एग्ज़ाम रहती है, सेम आईआईटी की लेवल की एग्ज़ाम रहती है, और फिर उसके हिसाब से आपको आपकी फ़िज़िकल कुछ ये जो है एबिलिटीज़ तो होना चाहिए। तो आपकी हाइट समथिंग अगर है अच्छे से, और आपको डेयरिंग ये करना है, आपको अगर एडवेंचर अच्छे लगते हैं, तो आप ज्वाइन नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए डिफेंस आप ज्वाइन कर सकते हो, और देश की सेवा कर सकते हो आप यहाँ से। फिर आप यहाँ से बीआरसी में भी 12th पे कुछ जगह निकलती है, क्लरिकल या लैब इसके लिए, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। फिर ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। ये इसरो के लिए एग्ज़ाम रहती है, या साइंटिफिक ऑफिसर आफ्टर ये करने के बाद। फिर आप रिसर्च में भी कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहे, बीआरसी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नासा, इसरो और डीआरडीओ भी है आपका, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, साइंटिफिक ऑफिसर। उसके लिए आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप
साइंटिफिक ऑफिसर वहाँ पे बनोगे, साइंटिफिक ऑफिसर से फिर जूनियर से सीनियर, फिर और उसमें रिसर्च करना है, फिर और ये करना है, तो ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बीएससी करने के बाद एमएससी फिजिक्स में भी कर सकते हो, और उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर बीएससी करने के बाद फिजिक्स आप रेडियोलॉजिस्ट भी कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो रेडियोलॉजिस्ट में, जिसमें आप जो सोनोग्राफी से और अलग अलग जो अभी चीज़ें नए टेक्नोलॉजी में आए हैं, तो उसके लिए जो टेक्नीशियंस है तो वो भी आप काम कर सकते हो। एक्सरे टेक्नीशियन का कर सकते हो आप, सोनोग्राफी ऑपरेटर्स कर सकते हो, डेटा ऑपरेटर्स का काम कर सकते हो। तो ये सब स्किल जो है आप चाहे तो जब जब टाइम मिलता है तो यू कैन एक्वायर सभी स्किल, आप उसको आप यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत एरियाज़ है जिसमें आप ये कर सकते हैं। कुछ जो है आप अच्छे से अगर है तो होटल मैनेजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो ये जो है एग्ज़ाम दे के हम क्या करते हैं, तो ये सब स्किल जो है वहाँ से हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर उसका रिलेशंस देखते हैं। कुछ ऐसे रिसर्च में हम एक दो ऐसे क्वांटिटीज़ को वैरी करते हैं, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसमें क्या वेरिएशन आया, फिर उस पर से हम अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा है, फिर ये ऐसी होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलता है। तो इसके लिए हम ये तो मेरा कहने का मतलब है कि फिजिक्स आपको हर फील्ड में आपको ये मदद करेगा। तो चाहे आप कोई भी एक ले लीजिए, आपको अच्छे से अगर जॉब करना है, बहुत आपका अगर ये है तो आप साइंटिस्ट बनिए, ऑटोमोबाइल्स में अच्छे से डिज़ाइन करके अच्छे व्हीकल्स बनाइए, ऐसे व्हीकल्स जो बिना सब नेचुरल पे चले। आजकल नेचुरल का जो है, हम जो चीज़ें नेचुरली यूज़ करके जो बनाते हैं, जो सिस्टम हमारे बॉडी नेचर में है, नेचर कैसे चलाता है, अगर उसी का अगर हम यूज़ करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बताओ कि कलर जो है ये फिजिक्स में है, ये किस पे, वेवलेंथ पे रहता है अपना, किस पे रहता है, वेवलेंथ पे। और ये कलर जो है ना, एक गिरगिट जो है वो कलर चेंज करते रहते हैं, तो उसकी बॉडी में ऐसा कुछ है, इसकी सरफेस में ऐसा है, तो कलर अगर हम ऐसे एक गाड़ी ले या कुछ ऐसा ले कि वो ऑटोमेटिकली उसके साथ नेचुरली कलर चेंज कर रहा है, देखो फिर, और उसमें कोई एनर्जी आपको ना सप्लाई करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, सोलार का आप अगर यूज़ करोगे, जो अभी जो हमें इसमें करियर करना है, उस करियर का ऐसा हो या कुछ भी हमें करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। फिर उसके साथ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम करें एक तरफ एक डेवलपमेंट, पर उसका साइड इफ़ेक्ट जो है कुछ पोल्यूशन के में जा रहा है, तो विदाउट पोल्यूशन, विदाउट लॉसिंग अनदर एनी ऑर्गेनिज्म, अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, और ये आपका तभी हो सकेगा जब अच्छे से आप ये रहोगे, अच्छे से सोचोगे। तो माइंड को जो है अगर अच्छा बनाना है या माइंड को आपको डेवलपमेंट करना है, तो ये फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये बेसिक हर इसमें अगर जाए, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि फिजिक्स, हाँ यस वंडरफुल, ऐसा नहीं। कुछ को लोगों को ऐसा आजकल बहुत सारे इसमें ये है कि कुछ लोगों को उसके बारे में ये नहीं रहता कि ये ऐसा रहता है, फिर वो क्या करते कि ब्लेमिंग है, यार ये ऐसा है, हमें वो नहीं सोचना है। ये दुनिया माने ना माने, फिजिक्स पहले से फर्स्ट से लेके आज तक ये एक बेसिक सब्जेक्ट रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, टेक्नोलॉजी के लिए हो, आपके सैटेलाइट बनाने के लिए हो, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए हो, या बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए हो, स्टीम इंजन बनाने के लिए हो, कुछ भी रहो, तो ये बहुत सारा है। तो ये क्या है, इसके लिए आपको काम करना है। किसके लिए काम करना है? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेटिस्फैक्शन आपको मिलना चाहिए जॉब और सर्विस, और ऐसा कुछ आपको काम करना है, रिसर्च करके करना है। चाहे आप एस्ट्रोनॉट करके स्पेस में आपका अपने कंट्री का नाम करना है, या आप ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो। अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर हमें फिजिक्स आता है, अगर चाहे आप ट्यूटर, ऑनलाइन ट्यूटर करते हो तो बहुत सारा पैसा करोड़ में कमाओगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो, जैसे हम इधर टीचिंग फील्ड में आए, वो भी टीचिंग में फील्ड में, आजकल प्राइवेट का आपको ज़माना पता होगा
कि बहुत सारे ऐसे टीचिंग ऐप या ऑनलाइन टीचिंग के कोर्सेस चलाए जाते हैं। फिर ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेस में आजकल अब जो करोड़ों रुपए का बिजनेस है, अब जो करोड़ रुपए का बिजनेस है, जैसे कि आपको ये होता है बायजूस है, खान एकेडमीज़ है, अन एकेडमी है, और बहुत सारे दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे एकेडमीज़ है जो इस नॉलेज को अच्छे से उसको फॉर्मेट में कुछ ऐप्स के यूज़ करके ये नॉलेज क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। और उससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, एक इंडस्ट्री वो जो है ये इंडस्ट्री एक बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री ये आजकल चल रही है, क्योंकि एजुकेशन जो है या टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोफेसर, ये सर्विस सेक्टर में भी आ जाता है। क्योंकि आज तक जैसे कि हमें कुछ चाहिए सर्विस, एयरटेल वाला सर्विस दे रहा है, हम उसको पैसे देते हैं, फिर उसकी हमें ये मिलती है, डेटा मिलता है, कॉलिंग के लिए हमें ये मिलता है पर्टिकुलर कितनी कॉलिंग है, अनलिमिटेड कॉलिंग। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कि हम पैसे देके कुछ ट्यूटर जो है, कुछ होम ट्यूटर का भी काम करें, होम ट्यूशन। आप मेरी बात बताओ कि होम ट्यूशन में भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर फिजिक्स आपका अच्छा है, होम ट्यूशन एक स्टूडेंट का 1 लाख रुपए तक की आप फीस आपको लोग देने के लिए तैयार है, एक स्टूडेंट पर स्टूडेंट। अगर 3-4 स्टूडेंट अगर एक ही रूम में है या एक घर में है तो वहाँ पर आपको 2 या 3-4 लाख आप वहीं पे कमा सकते हो, ओनली 1 आवर्स और 2 आवर्स, ओनली 1 आवर 2 आवर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-2 घंटे काम करते हैं और ऐसे पढ़ाने के लिए उसको हर एक का, अभी मैंने भी काम किया है, बताओ आपको कि इंस्टीट्यूट पे आपको हर लेक्चर 5,000 रुपीज़, 200 का क्लासरूम। फिर आपको खुद की कोचिंग क्लास में भी ये कर सकते हो, आप उसमें भी इन्फॉर्म कर सकते हो। आपकी आइडियाज़ आप लगा के बहुत सारा पैसा, मीन्स आप मिलीनियर्स बिलीनियर्स भी इसमें होगा, करोड़पति भी आप हो सकते हो। तो ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपको कुछ डिफ़िकल्ट होगा तभी आप उस पर काम कर रहे हो, तो लगेगा कि ये हाँ डिफ़िकल्ट है इसलिए तो कर रहे हैं, ईजी है तो कोई भी कर लेता। जैसे खेत में अगर कोई है तो ये इसकी बात नहीं है। इस तो आपको पहले से लेके इसमें अच्छे से जो है आपको बेसिक से इसमें काम करना पड़ेगा, तब ये हो गया। तो जो आपको आपका जो मोटो ये है, एम जो है लाइफ में आपको जो बनना है, तो वो कम मत सोचिए, आपको बहुत आगे का सोचना है। आपका विजन जो है कि मुझे ये बनना है, बनने के लिए नहीं, करते जाना है, बनो या न बनो कि पर उस डायरेक्शन आपको जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है तो उसमें पढ़ाई करके, और उसके बारे में फिर आपको कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से आपको करियर के इसमें मिलेंगे। फिर ये जितने भी है जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से आपको मिलेंगे। इंटरनेट के में आज बहुत सारे इश्तिहार आते हैं, एडवर्टाइजिंग आती है, उसमें से मिलेंगे। या खुद का आप इंटरप्रेनर, खुद का बिजनेसमैन में इंटरप्रेनर हो सकते हो। आप खुद ऐसे ये करके एक एकेडमी अगर ये करते हो तो शेयरिंग से आप आपके दोस्त से, फिर दोस्त का अगर कोई स्टूडेंट है उसको ये कर सकते हैं। और फिर ये जो प्रक्रिया है, हर एक को, हर गांव में से बच्चा पढ़ना चाहिए। टैलेंट जो है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट जो है आपके एक शहर में से आता है या उसकी बेसिक ऐसा है। तो टैलेंट जो है ये ऐसी चीज़ है, कुदरत की ऐसी चीज़ है, ये किसी को भी, ये कहीं से भी निकल सकता है। एक आधा साइंटिस्ट जो होगा ये हर एक गांव से, हमने अगर हिस्ट्री अगर देखी जाए तो आदमी को हिस्ट्री के बारे में जब सोचोगे और फिर हिस्ट्री में आज क्या है, तो हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है, हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड या नई हिस्ट्री भी वहाँ पे बन सकती है। तो ये बातें आपको सोचना है। फिर बहुत सारे कि ये जो चीज़ें हैं आपको, और एक हिसाब से यहाँ पे सब दिए आपके, हर एक इसमें आप जा सकते हो, बैंक पीओ, क्लरिकल, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, मैनेजर, आईएएस लेवल पे जाओगे आप। एसएससी एग्ज़ाम देके आप क्या करोगे, एसएससी एग्ज़ाम मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस का रहता है, एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। रेलवे में भी अच्छे आप क्लरिकल के इसमें भी जा सकते हो। तो जब फिजिक्स का नॉलेज है तो दूसरा आपको जब उसका रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वो बहुत ईजी जाएगा और आप अच्छे से उसमें करोगे।
अगर मैं इसकी बात बता दूँ आइंस्टाइन की, तो आइंस्टाइन इज़ अ क्लरिकल में फिर जैसे उसको ये करना था, अपना गुजारा करना था पेट में भरने के लिए, तो उसने क्लरिकल जॉब किया। और क्लरिकल जॉब करते करते जैसे कि वो सोचते था मैथमेटिक्स ये है, ऐसा हुआ। फिर वो जब पेपर जो वहाँ पे ये होते थे, पब्लिश होते थे, वो देखता था फिजिक्स में आजकल नया क्या है। तो हम क्या करना चाहिए, फिजिक्स में आपको अगर इंटरेस्ट बढ़ाना है तो आप 6 क्लास से लेके थोड़ा सा उसमें ये करिए। फिर जैसे जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हो तो आप मैगज़ीन पढ़ते जाइए, आजकल नया क्या फिजिक्स में चल रहा है, रिसर्च कहाँ पे चल रहा है, और फिर उसके लिए आपको परस्यू करना है। तो कुछ एज रहती है, जैसे जैसे एज उस हिसाब से हमें करना है। तो ये प्रोसेस आपको चलनी चाहिए। लर्निंग जो है कभी भी नहीं, एक टीचर होगा तो वो अगर लर्नर अगर है, वो अगर स्टूडेंट की तरह अगर पढ़ाई करता है वो तब वो अच्छा टीचर अब कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और एक बात बता दूँ, फिजिक्स जो है और एस्ट्रोनॉट की जो इंक्रीज रेट जो है ये बहुत सारा है। 9% जो होगा मीन्स आज हम 2020 में हैं और 2018 से 25 तक या 2028 तक ये 10 सालों में 9% से फिजिक्स ये बढ़ने वाला है। फिजिक्स जो है ना 9% बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या बनेगा, स्पेस में एक दुनिया बनेगी स्पेस में। और ये इमेजिनेशन जो आज हम इमेजिनेशन करते हैं उस तरह से आप इमेजिनेशन की दुनिया, और वो एक फिजिक्स की मटेरियल से, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल होगा। जैसे कि आजकल मोबाइल हम टच स्क्रीन से है, कुछ ऐसे लेज़र्स यहाँ पे वो यूज़ होता है। तो लेज़र एंड और नेचुरल कुछ ऐसे मटेरियल अगर नैनो टेक्नोलॉजी या 2-3 इसका अगर फिजिक्स का यूज़ करके के, तो ये 9% में ये लोग बढ़ने वाले। 9% ये बहुत बड़ा ये हुआ, बहुत बड़ा ये होने वाला है। तो आपको आने वाले 10 सालों में फिजिक्स के लिए इतना जो एटमॉस्फेयर है बहुत बढ़िया आपके लिए ये है। जैसे कि बारिश या चाहिए तो फसल जैसी आती है, हार्वेस्ट अच्छा होता है, सेम उसी तरह से आज अगर आप ग्रेजुएशन फिजिक्स लेते हो या फिजिक्स की पढ़ाई आप स्टार्टिंग से करते हो, या आप लोगों को गाइडेंस करते हो, आपके स्टूडेंट को गाइडेंस करते हो कि ऐसे होने के बाद ये सभी जितने भी है हमें इस लगने वाले किसमें जो आजकल हम ज़िंदगी में जितनी भी लगने वाली जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी कुछ सेक्टर्स है, सभी में आज आप ये कर पाओगे। तो ये एक सब्जेक्ट के बारे में है आज। तो ये सब मैंने आपको बताया, अपने बोर्ड से भी आपने देखा होगा। और अगर कुछ भी आपको ये आती है तो आप गूगल का भी यूज़ करके हर एक नए नए सेक्टर के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारे ये मिलेंगे। तो करना क्या, हमें करना है, हमने ठान ली है, आपको कमिटमेंट करना है, खुद से कमिटमेंट करना है और रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको लगेगा कि नहीं मैं आप छोड़ दूंगा, तो नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके साथ नेचर भी जुड़ा है। जैसे कि आपने इस कोविड के इसमें देखा होगा कि बहुत सारे ये होगा, फिर पर नेचर का जो है ना, नेचर को कोई ये नहीं कर सकता। टाइम एंड टाइड और नेचर, इसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। नेचर पे चाहे हम कितना भी ये करो, फिर हमें नेचर के साथ अगर डेवलपमेंट करनी तो ये पॉसिबल होगा। तो आज तो ये मैंने थोड़ा सा जो ये किया है फिजिक्स के बारे में या करियर डेवलप करने के बारे में, कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लाभदायक होगी, ये आपके जीवन में ये काम आएगी। धन्यवाद। तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर का या सरांचा म्हणजे राठोड सर जे यांनी आता लेक्चर घेतलं आहे त्यांचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे असतील आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, तर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। आणि या व्हिडिओला जे फिजिक्समध्ये करिअर करणार आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचवा। व्हिडिओच्या खाली लाईक बटन आहे, त्या बटनला प्रेस करा, मित्रांमध्ये भरपूर शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ओके, महत्त्वाची गोष्ट ही की सर माझे आयडियल टीचर आहेत, बरोबर, ज्यांनी मला FYBSc, SYBSc आणि TYBScला शिकवलं आहे फिजिक्स। ओके, मेन पर्पज काय आहे त्यांना हा बोलवायचा की फिजिक्समध्ये अपॉर्च्युनिटी काय आहेत,
काय अपॉर्च्युनिटी आपल्याला फिजिक्समध्ये काय काय करिअर करू शकतो आपण त्याच्याबद्दल. तर जर का सरांचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, कारण सर एक्सायटेड आहेत की जर का कमेंट म्हणजे चांगला प्रतिसाद मिळाला तर अजून ते व्हिडिओ बनवणार आहेत आपल्या चॅनलसाठी. ओके, तर कमेंटमध्ये कळवा, नक्की कमेंट करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. ओके, थँक्यू. ओके.